Now we will go ahead and try to send some data. Okay, we'll try to send some data from the view to the controller. And what is that data then? This is the view, this is the controller. What data is transferred between them? What is the data called? Model, right? The view and the controller are two badminton players. The shuttlecock is the model. So the view and controller will trade between. They will which currency they will trade in? They will trade in currency. Okay. So now we will uh, send some model class. So I will go to my model package and make a new class. Let's say I want to return a player details. So I come here and normal the class which we make Pojo class, jersey number, player name, matches played, integer, run score. Okay, and then add all those things which we are normally associated with the Pojo class. So and you have to add the setter getters over here because I will show you what is the purpose of the setter getters. So and if you are adding a all args constructor, good practice to add an empty no args constructor. If you wish to add a toString, you can add. So you can add all the things which a Pojo requires. Okay. Now what I will do is I will make. Okay. So the ways of sending the data. So the green part is from where to where, and the red is from where to where. So there are three ways of sending data from here. One is model, okay. Then one is model map and model and view. There are three ways of sending data. Okay, this is over here. There are three ways of sending data from the controller to the view. And from the view to the controller, we have one way, model attribute. Okay. So if I want to create the object of this player, where will I create the object? Where will I write player P is new player? This is Java code, right? Java code, where will I create? In the view or in the controller? In the controller. And if I want to send this player object to the view, I can use either of these ways. Okay. So let's explore them. So I go to the controller. Okay, I'll make one more mapping. Okay, let's say I call it as a test mapping. So I call a test function. Then what will I make over here? Player P1 is new player, and I'll pass the four things to it: player jersey number, player name, matches code, matches played, and runs code. Okay. Now this player object is where now in the controller. From there I want to send it to the view. So I will pass through model. So these two rather, these two which I am marking in blue, these two are the parameters of the method. So what is the method name? Yes. Okay. So model and model map, they go as a parameter to the method. Okay. And now to this model I can add the attribute. Now
in the front end, by what name you want to refer this object as? In the view, by what name you want to refer this? And in the controller, by what name it is referred? So whenever the view will refer this Virat object, it will refer it by which keyword? So you bind that attribute. So in the model, and then we will return it to a particular view. Okay. Return it to which view? Now what should be here now? In my views, there should be a view by what? And here I can read that. Okay, so if I just give a hard code method, welcome to my page Virat. Okay, so this is hard coded information, correct? Okay, so this server should refresh. Okay, you should know at what latest time the server got refreshed, at 8:49. So now we can try and go and hit which endpoint. Okay, let's say I'll name the endpoint. Okay, you can name any endpoint, not necessary to give. So I and now will go here and try to hit what? So it is showing me yes, this one. But this is hard coded info. I don't want this hard coded. I want to read this object which I have passed. So if is written over here Virat Kohli, should display Virat Kohli. So then what do I do is that object is referred by what name in the view? But in the view it is referred by what name? So let me start with a simple example then first. Let me start with a simple example. So let me start with a simple example. Let's say I make an endpoint called demo and I make a string. Okay, let's say city equals to Pune. Now what is there in the city variable? Pune. I will map this to a string in which I will refer it in the view. So in the view, Pune will be referred as, right over the my city then, and return it to any view. Okay, so return it to any view. Let's return it to welcome. So which view it is going to now? So if I in welcome, if I want to say I stay in Pune, how will I display that? If I want to say I stay in Pune, so I will do like this, curly brackets and my city over here. So whatever I have passed over here from the controller, whatever I have passed, I will refer on the in the view by what name? My city. So what is in my city? So when it displays over here, I stay in, what will it display? So how do I hit that endpoint? So let me comment this. If there are any errors, comment it out as of now. No, don't comment that. What happened? Is there the function name? Method name is same. Okay, method name is same. Let's change the method name. Okay. So now if I try to hit demo, what will it display? Okay, got it. So if I change over here from Pune to Delhi and do a refresh, what will happen? Okay, you should have refreshed the server. Server should refresh. Okay, now it has. Now let's try to refresh this. Okay, got it. So I can
can send a string also, I can send an entire object also. Now this P1 object is referred by what name in the view player? So when I come to Virat, okay, so this is Virat, this is name, right? So I will display like this, player dot and whatever attribute I have got from the model class. Which attribute? So like this, if you are passing an object, it will come in a variable, and then you can, with the dot operator, give the properties. Let's try to hit. This was which endpoint? What happened? Which endpoint was that? For Virat, test, right? So I should have tried with test. Okay, now got it. And if I want to say jersey number 18 also, if I want to say jersey number, I like jersey number 18, what will I say? Player.jmo. Okay. If I want to show Virat has played 100 matches, Virat has played MP matches. Okay, so once you have got the object, you can play around with it. Got it? So like this, you can send the data from the controller to the view. So one way is using model. Another way is as model map. Okay. So just take any, okay, take any starter. So normally whatever endpoint I give, I name the function with the same. Model map also is similar to model only. More or less does the same job. So if I say over here 45 Rohit Sharma, okay, you all can research and let me know what are the situation in which we can use model or model map. Okay, now I'm passing this player, and let's say if I'm routing it to Rohit, then what will happen? I'll have to get a view Rohit, and to access that same thing, we can do it over here also, right? Because everything is same, right? So how do I hit that endpoint? To hit that endpoint, I have to give over here slash starter. Okay, everything is over here. So we have model map, and model and view. Okay, so you pass the model, associate whatever variable you want to associate with it, and use with $test. Okay, you can pass the entire object also. That class should have setter, getter, constructor, toString. You make the object, refer this object as stud, and then pass it to the hello. The hello will say $stud.sname. Okay, okay. Then the third way is model and view. So model and view is also a little bit, okay. In that, no need to pass it as a parameter. Okay, so anything, okay, I will say reload. I'm just picking up the keywords from here. Okay, this was reload, this was starter. So in model and view, no need to pass as a parameter, this will be empty, but you can make the object. But here you have to make the object of the model and view. Then model and view, give any object name is new model and view.
So here you have to set it like how we are returning over here. So you have to return this MAV. So is of what type? So the return type of this function will be model and view. Okay. So now you have to set to which. So you can say MAV dot set view. Okay. Set view name. So which view are we returning to? Let's say I return to Dhoni. So we should have a view by name Dhoni, right? Okay. And here whatever object you want to pass, you can pass. So let's say I pass the same object in Dhoni also. So we can pass the objects over here. Okay, so I made the object 7 MSD has placed 300 matches, has scored 7,000 rupees. Okay, so and now we have to set this. So in this we have add attribute method. In MAV we have something different. Okay, MAV dot add object. What we have over here? Add object. So which object do you want to add? The P1 object will be called as what? The P1 object will be called as what in the front end? And then you return the MAV and to return you. So it will go to, so when I hit reload, it will go to which view? Dhoni, right? Let me try. Okay, got it. So these are the three ways you have of sending data from the back end to the front end. Okay. So now there is one way of sending data from the front end also. That is what? Model attribute. So now if I make, see, the client will always hit the controller endpoint. Okay. So always the application will land at the controller because the client does not know about the view, correct? So to add a player, we will make an endpoint by what name? Add player. So to add a player, client will hit which endpoint? Add player. So he will hit this endpoint, will go to this method. Okay. So what we will do is the request will land over here, correct? Add player is where? Endpoint in the controller, correct? Then what we will do, we will make a empty object, send it to the front end. How do I send it to the front end then? Using model. Using model, I will send this empty object. Whatever add attribute by whatever name. So I want to call it as a player. And which object? P1 or P. And I will return it to add player form. Which endpoint? So what should be there now in the view? What? Okay. Yeah. So let's try to do that. So I come here. I make an empty object because this all details will be given to me by the whom? By the customer, right? So the customer will make a web page which will have 4 text boxes: player jersey number, player name, matches played, runs scored. So he will provide me with the details. So I'm just sending an empty object. He will fill it and he will give it back to me. Okay. So
when the client hits add player, it makes an empty object of the player. Okay, if you are comfortable with this, we can use this also. So which view are we going to? And I normally use the view as kebab case. Kebab case means all small and the words are separated by a hyphen. And this P is be called as player. Okay, we have to make this view then. Now in this we have to accept the details of the player, right? So I will come here and let's say I can take help of chat GPT over here. Okay, JSP page to add a player having attributes J number, P name, MP, RS using Spring MVC. So see, it will give me the JSP page. सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए था बस, ये अपना JSP फाइल वाला, ठीक है। कॉपी किया मैंने और अपने इसमें पेस्ट कर दी। ओके, अब इसमें देखो ये जो है ना, ये JSP की टैग लाइब्रेरी होती है। एम आई ऑडिबल टू ऑल गाइस? तो ये फॉर्म ये सब है ना, उसके टैग लाइब्रेरीज होती है। अगर आप ये टैग लाइब्रेरीज यूज़ कर रहे हो तो आपको उसका जार होना चाहिए आपके पास। तो मेरे पास उसका जार होना चाहिए, ठीक है। सो JSP के अंदर ना, हाँ JSP दिख रहा है, ये JSTL। तो ये जार अगर आपके पास रहेगा, जार को उठाओ और डाल दो अपने लिब के अंदर ना, जहाँ सारे जार्स थे अपने, तो उसके अंदर ये जार भी डाल दो, अगर आप JSP के अंदर ही टैग लाइब्रेरीज यूज़ कर रहे हो तो मैंने लिब में गया और वो पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो JSTL वाला आ गया, नॉट बैड, ठीक है। और अगर तुम लोगों को कुछ एरर आते हैं, अगर यहाँ पर ये अंडर्स को आता है इधर एरर लाल लाइन लाल कलर का, तो फिर अपने अपाचे टॉम कैट के अंदर जो है, जहाँ हमने अपाचे टॉम कैट इंस्टॉल किया है, ठीक है, उसके अंदर एक लिब फोल्डर है, उसमें ये दो फाइल होते हैं, JSP API सर्वलेट API। ये जार्स को भी कॉपी करने का और लिब में डाल देने का, तो वो भी मैंने लिब में डाले हैं, ठीक है। JSP API और सर्वलेट API ये भी डाल सकते हैं, और ये मैंने अभी डाला है JSTL, ताकि टैग लाइब्रेरी सबको सपोर्ट मिले, ठीक है। अब क्या कर रहा है, वहाँ से जो मॉडल एट्रीब्यूट आया वो क्या नाम से आया है, ठीक है। ये मैच होना चाहिए, ये मैच होना चाहिए इधर, ये प्लेयर, ठीक है। अगर इधर प्लेयर एक्स है तो फिर यहाँ पर आपको प्लेयर एक्स करना पड़ेगा, किस पे, ऐड प्लेयर फॉर्म में। तो किस नाम से आया है वो, प्लेयर एक्स। अब उस प्लेयर एक्स का यहाँ पर एक टेबल फॉर्म में ऐड कर रहा है, ये है ना, लेबल, और ये पाथ मैच किससे होना चाहिए, पाथ मैच एट्रीब्यूट JNO P name MP RS, ये उससे मैच होना चाहिए। तो JNO P name MP RS हो गया। और जब हम सबमिट करेंगे फॉर्म को तो वो जाता है उसके एक्शन में, किसमें आता है, एक्शन क्या लिखा है, सेव प्लेयर, वो कौन सी मैपिंग है। तो फिर यहाँ पर जो है हम एक पोस्ट मैपिंग बनाएंगे, क्या नाम से, हाँ, ठीक है, सेव प्लेयर्स। अब वो डेटा इधर आ जाएगा, उसको एक फंक्शन से लिंक कर देंगे, ठीक है। फिलहाल तो मेरा मेरा ये होता है कि जो फंक्शन का नाम वही नाम। अब वहाँ से मुझे पूरा भर के ऑब्जेक्ट मिल रहा है ना, मैंने तो खाली ऑब्जेक्ट भेजा था, मैंने तो खाली भेजा था ना, मुझे फिर यहाँ से भर के आएगा। तो जो भी 33 आया, 33 हार्दिक, और जो भी है 10 मैच खेला है, 200 रन मारा है, तो ये भर के ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट भर के आ रहा है, ये किससे आएगा मेरे पास, मॉडल एट्रीब्यूट से, ठीक है। तो वो भी एज अ पार्ट ऑफ द
सिर्फ मॉडल एंड व्यू के अलावा बाकी सब कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर आ गया। और फिर अभी मैं कंसोल पे इसको डिस्प्ले कर देता हूँ बस। अब तो मतलब कुछ आगे कुछ है नहीं करने के लिए, तो कंसोल पे डिस्प्ले कर दिया मैंने, तो मालूम पड़ेगा कि बराबर आया है। ठीक है, तो अब देखो, ऐड प्लेयर हिट किया तो उसने एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाया और इस व्यू को राउट कर दिया है ना। मेरा एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्या नाम से गया है, प्लेयर एक्स। फिर वो इधर आ गया तो यहाँ पर मैप करने का, प्लेयर एक्स में आ गया तो दिखाते वक्त सब एम्प्टी दिखाएगा, ज़ीरो, नल, ज़ीरो, 0.0 दिखाएगा। और जब मैं भर के उसको भेजूंगा तो वो जाएगा उसके सबमिट पे, तो वो जाएगा उसके एक्शन पे। तो एक्शन कौन सा है और किस टाइप का है, पोस्ट। तो वो जाएगा कंट्रोलर में, इधर आ जाएगा सेव प्लेयर पोस्ट मैपिंग में, प्लेयर पूरा इधर आ गया। ठीक है, तो अब जाके हिट करते हैं, कौन सा एंड पॉइंट है ये, ऐड प्लेयर है ना। देखते काम करता है क्या, कहाँ था वो, नहीं था ना हमारा, इसी में था ना, यहाँ पर था क्या, दिख रहा है। तो मैं जाके हिट करता हूँ ऐड प्लेयर, तो देखो एम्प्टी फॉर्म खुल गया, 0, 0, 33 डाला मैंने, हार्दिक मैचेस प्लेड 10 और रन स्कोर 200, और ऐड प्लेयर पे क्लिक किया तो सेव प्लेयर नहीं मिल रहा है। ओके गाइस, ये अपना ये क्या, दिस इज कंट्रोलर ना, कंट्रोलर विल ऑलवेज रिटर्न अ स्ट्रिंग राइट। दिख रहा है प्रोजेक्ट, दिख रहा है इधर आ गया वो। तो कंट्रोलर का एंड हमेशा स्ट्रिंग होगा ना, रिटर्न वॉइड नहीं होगा, तो स्ट्रिंग होगा। तो लेट्स से कि मैंने उसको एक मॉडल एट्रीब्यूट बना दिया, ठीक है। और मैंने क्या किया, अभी समझना, देखो मैंने इसको भेज दिया कन्फर्म पे, किस पे भेज दिया मैंने, ठीक है, कन्फर्म पीछे भेज दिया। और ये जो मेरा प्लेयर आया था इसको मैंने किससे लिंक कर दिया उधर, किससे लिंक कर दिया मैंने इसको, प्लेयर कन्फर्म, व्हाट विल बी रिटर्न, एम ना, एम किस टाइप का है। जब सेफ प्लेयर को हिट करेगा तो सारा डिटेल इस वाले ऑब्जेक्ट में आ गया। वो ऑब्जेक्ट मैंने मैप किससे कर दिया, और कौन से व्यू को भेज दिया। तो मैं यहाँ जाता हूँ न्यू पे और क्या बनाता हूँ, एक .jsp, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्लेयर एडिड, ठीक है। और उसके डिटेल हम यहाँ दिखा देंगे, फिर जैसे हमने यहाँ पर दिखाए थे, कौन सा प्लेयर ऐड हुआ है वो दिखा देते हैं। तो आपको जैसे दिखाना है वैसे आप दिखा सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ प्लेयर नेम, ठीक है, प्लेयर मैचेस प्लेड और प्लेयर रन्स। एक बार अपने को आ गया तो अपने को फिर यहाँ पर यूज़ करने आता ना, तो अपने हिसाब से कर रहे हैं बस। दिस इज इन द प्लेयर कन्फर्म ना, कन्फर्म डॉट JSP। जब वो सेव पे आएगा, सेव पे, तो हार्दिक का रिकॉर्ड इस ऑब्जेक्ट में आ गए ना, इस ऑब्जेक्ट को मैंने इससे लिंक कर दिया, तो वो क्या होगा, प्लेयर कन्फर्म है ना, प्लेयर कन्फर्म पे आएगा। तो इसको क्या यूज़ करना पड़ेगा अपने को, प्लेयर कन्फर्म, ठीक है। तो अब जाके वापस हिट करते हैं, वापस हिट करते हैं हम लोग, कौन सा, ऐड प्लेयर, ठीक है, आ गया इधर। तो 77 शुभमन मैचेस प्लेड 30
रन स्कोर 500, ऐड प्लेयर आ गया। और कंसोल में भी दिख जाएगा, कंसोल पे दिख गया होगा क्योंकि अपन ने निकाल दिया, कंसोल का निकाल दिया अपन ने। ठीक है, तो ऐसे हम लोग डेटा सेंड और रिसीव कर सकते हैं कंट्रोलर और मॉडल, कंट्रोलर और व्यू के बीच में। और जो डेटा जा रहा है वो मॉडल है। तुमको समझ में आ रहा है अभी? हम्म, ऐसा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आपको सारे प्लेयर्स देखने हैं तो अभी तो हमारे पास हार्ड कोडेड डेटा है सिर्फ ना। तो अभी समझो मुझे सारे एक प्लेयर्स का रिकॉर्ड दिखाना है, टेबल फॉर्मेट में दिखाना है। तो ऐसा है, बस एक मैं एंड पॉइंट बनाता हूँ, रिक्वेस्ट मैपिंग ऑल प्लेयर्स। ठीक है, जो एंड पॉइंट का नाम नॉर्मली मैं वही फंक्शन का नाम रखता हूँ, और यहाँ से मैं डेटा भेजने वाला हूँ। तो क्या ले लूँगा मैं? ठीक है, मॉडल ले लो। आपको मॉडल एंड व्यू समझ में आया तो वो ले लो, आपके ऊपर है। ठीक है, मॉडल लिया तो फिर यहाँ हम लोग स्ट्रिंग ले लेंगे, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे 3-4 प्लेयर के रिकॉर्ड भेजने हैं। ठीक है, तो मैंने अपने प्लेयर बना लिए। प्लेयर P1 इज़ न्यू प्लेयर 18, विराट 100, 5000। ठीक है, तो 1 2 3, जो 3 काफ़ी है। 1 2 3, 45, रोहित 200, 7000, 7, धोनी 300, 10,000। अब इनको मैंने एक लिस्ट बना ली, इसकी प्लेयर की क्या बोल के, न्यू एरे लिस्ट। प्लेयर ऐड कर दिया क्या, P1। अब ये मुझे पूरी लिस्ट भेजनी है फ्रंट एंड को, तो क्या करूँ? मॉडल डॉट ऐड एट्रीब्यूट, क्या नाम से, क्या से बुलाएंगे इनको? प्लेयर्स को प्लेयर्स। ठीक है, और क्या रिटर्न कर देंगे? ऑल प्लेयर्स। ठीक है, तो ये व्यू दिखा देंगे इधर। ठीक है, तो अब मैं जाके चैट जीपीटी को बोलता हूँ, आई वांट टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ प्लेयर्स। ठीक है, ऑन JSP फाइल। तो वो अपने को एक फॉर्मेट दे देगा, वो कॉपी करके आप अपनी बना लेंगे। तो सिंटैक्स आप यहाँ से ले सकते हो, और इसको कंट्रोल A करके पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये तो इनपुट ले रहा है। इनपुट नहीं चाहिए ना अपने को, तो इनपुट वाला दे दिया इसको, डिस्प्ले का ये चाहिए अपने को। ठीक है, ये चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो क्या किया देखो उसने, वो जो प्लेयर सारे आ गए इधर, ट्रेड करके किसमें ले लिया, एक एक को P में ले लिया, और P का जर्सी नंबर, P का नाम मैचेस पे आगे दिखा दिया, और ये हेडिंग हेडिंग बन गया है ना। तो अगर ये एक्स्ट्रा आप चाहो तो ये निकाल सकते हो, चाहिए तो ये इसने एक्स्ट्रा दिखाया है ना, आप निकाल सकते हो इसको। ठीक है, तो एक टेबल ले लिया और ये बना दिया। ठीक, ठीक है, सर एक्स्ट्रा पार्ट आप निकाल सकते हो, जरूरत है, सिंपल सा एक अपना लग रहा है। ठीक है, सो जो हमने प्लेयर्स भेजे हैं वो कहाँ पर आ गए, इस स्ट्रिंग में आ गए ना। अगर ये होता प्लेयर्स एक्स, तो क्या होता, फिर चेंजेस कहाँ होते, ये प्लेयर्स एक्स होते। प्लेयर्स एक्स का एक एक प्लेयर किस में आ रहा है, समझो समझो प्लेयर में आ रहा है।
क्या करना पड़ेगा अपने को उसके? यस, तो ये इसमें आ गए सारे, ये जो है ना, ये JSTL के कोर कोर टैग्स यूज कर रहे हो। कोर टैग्स में JSTL के सारे सी के कॉन्सेप्ट्स आते हैं सारे। ये फॉर ईच लूप है ये फॉर ईच लूप लगा दिया इसने इधर। ठीक है, ये अपने हेडिंग बन गए। टेबल है ना, पूरा सिंपल टेबल सा एक। अब मैं सेव करता हूँ तो मैं क्या हिट करता हूँ जाके अभी, मुझे सभी सारे टेबल, पूरा टेबल दिखाना है तो आई विल गो एंड हिट, आई विल हिट ऑल प्लेयर्स, राइट। तो आप अपने कंट्रोलर से इंटरेक्ट करोगे, कंट्रोलर आपको जो भी चीज़ें देनी है दिला देगा। आ गया। और उसको आपने मार्कअप करना है और ब्यूटीफाई करना है तो आप उसको मार्कअप लगा के अपना, ये क्या बोलते हैं, CSS लगा के, ठीक है, बूटस्ट्रैप टेबल लगा के आप अपना और ब्यूटीफुल कर सकते हो। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप टेबल आ गए। समझो आपने ये वाला टेबल दिखाना है, ऐसा वाला। ठीक है, तो टेबल को क्लास लगा दो, क्लास टेबल। जो हमारी टेबल थी उसको और क्या क्लास लगा दिया, टेबल लगा दिया, और उसके अंदर एक हेड लगा दिया, उसको ये भी क्लास लगा दिया। ठीक है, टेबल लगाया, टेबल हेड लगा दिया, फिर टेबल हेड को क्लोज कर दिया। यू आर एबल टू सी माय स्क्रीन, राइट? व्हाट आई आल सीइंग द हेड कर दिया, फिर हेड को अपन ने यहाँ हेड क्लोज कर दिया, राइट। फिर ये बॉडी शुरू हो गई यहाँ पर टेबल की, तो टेबल की बॉडी के अंदर अपन ने फॉर लूप लगा दिया, और फॉर लूप के बाद टेबल की बॉडी क्लोज कर दिया। तो ये सब अपन ने यहाँ से उठा लिया। ठीक है, ये सारे सेटिंग कहाँ से आने वाली है, तो ये टेबल डार्क, ये टेबल, और क्या है, बॉडी को तो कुछ नहीं है ना, बॉडी को कुछ भी नहीं। तो इसके लिए अपने को लगाना पड़ेगा ये वाला CSS, राइट। कॉपी करके इसको डाल दिया हेड के अंदर। ये सारे स्टाइल्स यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब सेव करता हूँ मैं, और अब जब रीलोड करूँगा उसको तो आपको आपकी टेबल मिल जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे सारे CSS आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो, आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, अब अगर मुझे ऐड प्लेयर करना है तो अगर मैं यहाँ पर ही एक ऐड प्लेयर का लिंक दे दूँ तो, अगर मैं यहाँ पर ही एक ऐड प्लेयर का लिंक दे दूँ इधर, हम लोग को ऐड प्लेयर, देखो अपने को ऐड प्लेयर करने के लिए क्या करना पड़ रहा है, ऐसा करना पड़ रहा है ना, ये ऐसा करना पड़ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर ही एक व्यू दे दूँ कि भाई ऑल प्लेयर्स के ऊपर दे दूँ एक ऐड प्लेयर, ठीक है, और चूँकि मैंने ये तो ले लिया है बूटस्ट्रैप, तो एक क्लास लगा दूंगा मैं उसको BTN, और कर दूंगा BTN प्राइमरी, ये ब्लू कलर की बटन बना देगा एक। ठीक है, और हम उसको लेंगे ऐड प्लेयर। ठीक है, और वो किसको राउट करेगा फिर अपने, तो अपना प्लेयर तो फॉर्म फॉर्म खोला ना, फॉर्म अपना इसी पे जा रहा है ना, ऐड प्लेयर पे है ना। देखो एक ऐड प्लेयर है, एक सेफ प्लेयर, समझ में आ रहा है डिफरेंस। ऐड प्लेयर वो फॉर्म खोलेगा, ऐड प्लेयर ये अपना फॉर्म खोल रहा है, ठीक है ना। तो इसको मैं कहाँ राउट करेंगे, इसको हम ऐड प्लेयर फॉर्म, तो ये फॉर्म पे जाएगा और फॉर्म से वो प्लेयर अपने को मिल जाएगा। ठीक है, अपना रिफ्रेश करता हूँ व्यू को, चेक करते हैं कि ऑल ऑल प्लेयर ना, तो ये बटन बन गई, ठीक है, और इस पर क्लिक किया तो वहाँ चला जाएगा ऐड प्लेयर फॉर्म पे। क्या बहुत देर लगा रहा है, आ गया। और जब यहाँ पर ऐड हो जाएगा तो फिर कहाँ जाएगा वो ऐड करके, तो कन्फर्म पे जाएगा ना, कन्फर्म पे, तो कन्फर्म पे जाएगा, राइट। तो मुझे उसको ऐड करने के बाद वापस इधर लेके आना है, ऑल प्लेयर पे ले जाना है वापस, ताकि वो यहाँ पर दिखा दे मुझे। ठीक है, तो उसको हम ऐसा कर सकते हैं कि जब तू ऐड हो जाए, तो जब तू ऐड हो जाए
तो राउट कर देना है वापस इधर, यू कैन राउट इट बैक टू दिस ऑल प्लेयर्स, है ना। देखो अगर आपको राउट करना है किसी व्यू को तो आप ये यूज़ कर रहे हैं, ऑल प्लेयर कोई व्यू है क्या, कोई एंड पॉइंट है, तो उसके लिए हम लोग रिटर्न यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, रिटर्न, और हाँ तो रीडायरेक्ट क्या यूज़ करते हैं, और कोलन और स्लैश उस एंड पॉइंट का नाम, यानी ये एक्टिविटी करने के बाद में आप इस एंड पॉइंट में चले जाओ। अब ये स्ट्रिंग टाइप है तो यहाँ पर स्ट्रिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये कन्फर्म को हम यहाँ कर देंगे ऐसे। तो आफ्टर कन्फर्म वो कहाँ चला जाएगा, हालांकि हम उसको ऐड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ऐसे दिखाने के तुमको बता रहा हूँ मैं। तो जब वो सेव प्लेयर करेगा तो कर आउट कर देगा उसको, ऑल प्लेयर्स। तो ऑल प्लेयर्स एक व्यू है क्या एंड पॉइंट है, तो अगर आपको व्यू पे करना है तो हम नाम देते हैं व्यू का, है ना, और एंड पॉइंट पे करना है तो रिटर्न, रीडायरेक्ट और एंड पॉइंट का नाम, ठीक है। तो अभी मैं देखो ऑल प्लेयर्स पे आ गया, ऐड प्लेयर क्लिक किया, कुछ भी डाल दिया इसके अंदर, तो ये सबमिट करने के बाद वहाँ चला जाएगा, है ना। क्योंकि अपने पास अभी हार्ड कोडेड डेटा है, इसके लिए अपन उसको सेव नहीं करें डेटाबेस में, बाकी हम आगे जाके सेव करेंगे तब पूरा दिखा देंगे। तो तुमको फ्लो समझ में आया अच्छे से।